Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics from the platform of Ikra Hufaz Girls Secondary School. It's lecture number 34 from chapter number 5, vectors. The topic which we are going to cover today is composition of vectors. In the previous lecture, I told you that composition of a vector is just opposite to the resolution of a vector. I have discussed the resolution of vector in my previous class, which is the process of splitting a single vector into its components. Today, the same rectangular components are there, and with the help of head to tail rule method, head to tail rule, we are going to add these two rectangular components which are at 90 degrees to each other, and we will get the single vector. That is, if two components of a vector are given, their magnitude is given, their direction is given, then we can find out a single vector out of these two vectors, या with the help of these two vectors हम fx और fy की मदद से सिंगल वेक्टर f निकाल सकते हैं. और लास्ट क्लास में हमने रेजोल्यूशन वेक्टर पढ़ा था, जिसमें इस सिंगल वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया था, सॉल्व किया था, और इस प्रोसेस को हमने कहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो कंपोजिशन वेक्टर में हमारे पास इस दफ़ा इस कंपोजिशन वेक्टर में हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे fx एंड fy इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर f विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल. The head to tail rule says that when we want to add, when we are adding two vectors or any of the vectors, then the head of the first vector must coincide with the tail of the another vector, and likewise we can get the resultant vector. Okay, the resultant vector, I have also told you that it has the same effect as that of the components of the vector. रिजल्टेंट वेक्टर के पास वही इफेक्ट्स होते हैं जो उसके कंपोनेंट्स के पास होते हैं. अब हम आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना बताएंगे कि अगर हम कंपोज कर रहे हैं दो वेक्टर्स को, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, किस फॉर्मूले से मिलेगा. वो फॉर्मूला होगा दिस फॉर्मूला. एंड हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला कैसे मिला? by using Pythagoras formula, by using Pythagoras theorem, which you have done in your class 8 as well, that is hypotenuse square equal to the sum of base square and perpendicular square. ठीक है ना. आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में अपने क्लास 8 में पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये फार्मूला आपको याद आ रहा हो कि द सम ऑफ perpendicular square and base and the sum of the square of the perpendicular and square of the base is equal to the square of the hypotenuse. ठीक है ना, ये आपने अपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा. इसी फॉर्मूले के तहत hypotenuse here it is OC. okay, the hypotenuse is the side which is opposite to the 90 degree. Here I have written the name as well. Okay, and the side opposite to the theta is called the perpendicular. That is, here I have also given the name perpendicular. Where we are focusing this theta right now, हम इस एंगल को फोकस कर रहे हैं, तो according to that this is the perpendicular, and the side opposite to the theta is perpendicular, and the side adjacent to the theta is called the base. So the ratio between perpendicular and base is tan theta. The ratio between perpendicular and base is tan theta. This also we need. कैसे चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, ये हम आपको बताते हैं. So first of all, using the Pythagoras formula, we will just put the values of like hypotenuse, base and perpendicular, or we will just put the representative vectors of hypotenuse, base and perpendicular. Here the hypotenuse is represented by a single vector f. Okay, and the OA, that is base, is represented by fx, and the perpendicular, that is AC, or we can say OB, is represented by fy. Okay, since we want to find out the magnitude of the resultant vector,
we want to find out the magnitude of the resultant vector. So this f, if this f is on the one side of the equation कि जिसको हमें find out करना है. हमने एफ स्क्वायर को जब एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर को हम जब कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसका स्क्वायर, इसका हटाएंगे, ये आपके पास एफ का स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब हमने एफ स्क्वायर का भी रूट लिया और हमने जब एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट लिया तो एफ स्क्वायर का रूट जो है वो स्क्वायर को कट कर देगा और क्या बचेगा, एफ, सिंपल एफ. मगर यहाँ पे जो इक्वल टू के दूसरी तरफ, मतलब कि जो राइट हैंड साइड पे जो आपने रूट लिया है वो एज इट इज़ रहेगा और वो ये स्क्वायर इस रूट को या ये स्क्वायर इस रूट को कट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर है, एफ एक्स के ऊपर भी है और एफ वाई के ऊपर भी है. लिहाजा अगर हम रूट से एक स्क्वायर कट करते हैं तो एक स्क्वायर अभी भी मेंटेन रहेगा और ये रूल गलत, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स भी नहीं है. लिहाजा यहाँ का स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा और ये हो जाएगा विदाउट स्क्वायर, और यहाँ ये स्क्वायर रूट से कट जाने के बाद f बच जाएगा और ये हो जाएगा आपका f इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. Okay, so this formula is helpful to find out the magnitude of the resultant vector. In the upcoming class, we are also going to do the numericals relevant to this formula. Okay, so at that time you will get crystal clear idea that what I mean to say to find out the magnitude of the resultant vector. Okay, by the time we will do the numericals. Up till then you must just learn this thing, that this is the formula to find out the magnitude of the resultant vector. Okay, and this resultant vector is lying on the x-axis making some theta. This theta gives the or determines the direction of this resultant vector. ये थीटा जो गिवन है, जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये थीटा क्या बता रहा है, ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है. मिसाल के तौर पे अगर ये थोड़ा टिल्ट ज़्यादा हो, अभी फिलहाल ये देखें लग रहा है 45 डिग्रीज लग रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना. अगर ये थोड़ा टिल्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नहीं 45 डिग्रीज तो नहीं लग रहा. 45 डिग्रीज इसलिए नहीं हो सकता कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट विल मेक द 45 डिग्रीज. सो अभी ये भी हम आपको करके बताएंगे और ये आप यकीन तौर पर थ्योरम भी पढ़ेंगे मैथ्स में, जिसमें आपका एक थ्योरम होता है, द ऑपोजिट साइड्स हैविंग द इक्वल एंगल्स. ओके, या द टू इक्वल एंगल्स हैविंग द टू ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, लिहाजा ये थीटा 45 हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्रीज है, तो ये कभी भी 45 नहीं हो सकता, ठीक है ना. ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो कभी भी ये 45 नहीं हो सकता. हाँ, अलबत्ता ये 2 सेंटीमीटर है और एफ वाई भी 2 सेंटीमीटर होता तो ये 45 डिग्रीज के दो एंगल्स हो जाते हैं, एंगल ओ और एंगल सी दोनों 45 डिग्रीज होते हैं, ठीक है ना. या फिर अगर ये भी 4 सेंटीमीटर होता, ये भी 4 सेंटीमीटर होता, तब जाके जो है ये दोनों जो है क्या होते हैं, एंगल ओ और एंगल सी क्या होते हैं, 45 डिग्रीज होते हैं. ये इंशाल्लाह थ्योरम मैथ्स में भी पढ़ेंगे. तो लिहाजा आप ये जो कैलकुलेशन वाला वर्क है ये तो हम न्यूमेरिकल्स जब स्टार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. फिलहाल आपको इतना जानना ज़रूरी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच वी हैव ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम कह लें, पाइथागोरस फार्मूला कह लीजिए. अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के लिए. जो स्टार्ट किया था हमने कि डायरेक्शन कैसे हम मालूम करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिवन एंड यू हैव टू कंपोज दीज टू वेक्टर्स. सो विच टू वेक्टर्स आर गिवन, द परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन एंड द बेस वेक्टर इज गिवन. ओके, आपको परपेंडिकुलर का वेक्टर गिवन होगा और बेस वेक्टर गिवन होगा, जो कि क्या बना रहे हैं, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं. The two vectors which are two components at right angle to each other, that is fx and fy, are called the rectangular components. So these two rectangular components gives us the relation of tan theta. How? मैंने आपको बताया था trigonometric ratio में that the ratio between perpendicular
and base is called the tan theta. The ratio between perpendicular and base is called tan theta. I told you this thing in my previous class. Okay, so the ratio between perpendicular and base is tan theta. It means that perpendicular is represented by the AC and base is represented by OA. कैसे? परपेंडिकुलर को हमने AC से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बेस को रिप्रेजेंट किया है हमने OA से. So we will replace this AC or perpendicular with FY. Okay, AC कह लीजिए या OB कह लीजिए. We will replace this AC with FY and we will put or substitute FX in place of OA. हम OA की जगह पे क्या लिख देंगे? FX लिख देंगे. Then since we want to find out the theta, हमें तो चाहिए क्या? हमें तो चाहिए सिर्फ एंगल. So theta can be find out by dividing the components of Fy and Fx. हम Fy को जब Fx से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा मिलेगा तो सही, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको ये भी करना होगा, एक और एक्टिविटी करनी होगी. वो ये कि थीटा को आइसोलेट करना होगा. थीटा के साथ जो tan लिखा हुआ है वो आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे. जब आप थीटा के साथ जो tan लिखा हुआ है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan जो है वो अपॉन में आ जाएगा. ऐसा ही है ना, क्योंकि थीटा से tan मल्टीप्लाई हो रहा है. ये tan वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो जब ये tan वहाँ जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा? tan पावर 1 है ना, प्लस पॉजिटिव tan की पावर क्या आ जाएगी? +1. और जब इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी तो ये कितना हो जाएगा? tan +1 जो कि डिनोमिनेटर में होगा वो अपॉन में वो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? tan रेज़ टू पावर -1. ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ, रेसिप्रोकल का फिनोमेना. तो लिहाजा अब आप थोड़ा सा ग्रो हो जाएं और आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें. जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में जो जो चीज़ें बताती हूँ उसी का लिंक आगे चल रहा होता है, उसी की चेन आगे होती है. तो लिहाजा आपको अपना प्रीवियस लेक्चर भी रिकॉल कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने ये फिनोमेना सिखाया था आपको कि जब हम इस एक चीज़ को जो कि मल्टीप्लाई हो रही है आप उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगी, मगर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी जो पावर यहाँ पर tan रेज़ टू पावर +1 था अपॉन के अंदर, मतलब कि डिनोमिनेटर के अंदर, वो न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. ओके, तो आपका थीटा का फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा. थीटा इज इक्वल्स टू tan रेज़ टू पावर -1, मतलब 10 का इन्वर्स समझ लीजिए, ठीक है ना? 10 इन्वर्स and the ratio of Fy and Fx. Okay, so with that you can get the theta in degrees. Okay, आपको एंगल मिल जाएगा. So this is the formula for determining the direction of the resultant vector. Okay, so आपको पता चल जाएगा कि थीटा कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टिल्ट है, इतना टिल्ट है, इतना टिल्ट है. वेक्टर एफ जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो कितना टिल्ट है, इतना है, इसका दर, मतलब कि आपको इससे क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा वो आपका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा वो वाजे कर देगा आपको क्या? जो एक्स एक्सिस से जो आपका एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से वो बता देगा आपको क्या एक्स एक्सिस से कितना थीटा बन रहा है. एक्स एक्सिस से जो थीटा होगा वो क्या बता रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर एफ बता रहा होगा. ओके, सो दैट्स about the composition of vector. Okay, your homework is to learn the composition of vector, question number 9 of chapter 5 notes, which is on page number 6. Okay, so that's all for the day today. Inshallah we will meet in the next class with the new lecture. Till then, Allah Hafiz.